statements against the ban on wearing hijab in classroom. The judgment addresses three main questions: whether or not hijab is an essential religious practice, if prescribing a uniform violates fundamental rights, and third one is whether the Karnataka government's order dated 5th February 2022 mandating a uniform is arbitrary and violates rights of individuals. And before we go any further, it's really important to talk about things that will prevent discrimination towards hijabi Muslim women who are visibly Muslim at mainstream public spaces, and there's a fact that there is no hijab ban, and the court's order has a limited and specific applications, and I want to talk about those applications. There is no blanket ban on the practice of hijab. The High Court has not ruled on whether hijab is allowed in all educational institutions or not. It is very important to note that it has only been held that hijab is not an essential practice in Islam. Neither the government order nor the High Court judgment explicitly prohibits hijab in educational institutions, but they remove the protection of religious freedom for the practice of wearing hijab, which is a very grave issue at this point of time, and allow the prescription of uniforms that exclude hijab. These uniforms can be prescribed by state government for government colleges, development committees, and for pre-university board and private management for private institutions and colleges. While this can be used as an excuse to restrict hijabs in different educational institutions in Karnataka, we must argue that colleges still have the right to prescribe their own uniforms, and they can choose to be inclusive and non-discriminatory. A good example is the dress code of Kendriya Vidyalaya, which allow the wearing of hijab of the same color as the uniform. And before we go any further and discuss other implications of High Court's verdict, we are going to hear some very important voices that matter the most in these times. And I want to call our first speaker for the day, and Huma Masi. She's a student activist and a writer, and I would like her to speak now. Thank you. सुनने के लिए आए आप सभी पत्रकारों में बहुत अहम है कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके प्रभाव कहाँ तक जाए। हमें ये देखना चाहिए कि जब हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया तो उन किशोर बच्चियों के मनोविज्ञान पे क्या असर पड़ेगा जो आगे चलकर उनके जीवन में इसका प्रभाव पड़ने वाला है हाई कोर्ट के इस फैसले का, क्योंकि उन्हें हो सकता जब हिजाब पर फैसला नहीं आया था तभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि कर्नाटक से कैसे वीडियो सामने आ रहे थे। ये मामला तो स्कूल का था, लेकिन कॉलेजेस में भी ऐसा सामने आया कि हिजाबी मुस्लिम महिलाओं के साथ अपराध की गई। तो अब जब फैसला आ गया है उसके बाद क्या प्रभाव होंगे ये देखना बहुत अहम है, और मैं कोर्ट के इस फैसले से बहुत ज़्यादा आहत हूँ, व्यथित हूँ एक हिजाबी महिला के रूप में, और आगे भविष्य में देख रही हूँ कि आगे क्या एक बेहतर उम्मीद हमारे सामने आए। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। इस फैसले के बाद ये देखना चाहिए कि प्रभाव कहाँ तक जाएंगे। इसके प्रभाव सिर्फ कई लोगों को लग रहा होगा कि शायद इसके प्रभाव सिर्फ कुछ हिजाबी मुस्लिम महिलाओं तक सीमित होंगे, पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया है, लेकिन इसके प्रभाव सिर्फ हिजाबी मुस्लिम लड़कियों तक नहीं रहने वाले हैं। इसके प्रभाव उन सब समुदायों पे, भारत के बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं दलित आदिवासी जो अपनी वो चाहते हैं कि सरकारी संस्थानों में उनकी संस्कृतियों का वो जो संस्कृति का पालन करते हैं वहाँ के ड्रेस कोड को उसका हिस्सा बनाया जाए, लेकिन हमारा समाज अब तक इस लोकतंत्र को स्थापित करने में विफल रहा है। अब जबकि कुछ लड़कियाँ हाई कोर्ट गई थी, अब हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है और फैसले में उनकी एजेंसी को एक तरह से खारिज करने का काम भी हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये फैसला मुझे काफ़ी आहत कर रहा है। और दूसरा इसमें एक मुझे ये लगता है कि सोशल डेमोक्रेसी की हम अक्सर बात करते हैं, कल ही काशीराम जी की जयंती गुजरी है
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोशल डेमोक्रेसी की बात किया करते थे कि जब लोग कानून तो बन जाता है लेकिन उसके बाद उसकी स्थापना करने में कानून के बाकी अंगों को भी काम करना पड़ता है ताकि एक लोकतंत्र स्वस्थ रूप में स्थापित हो सके। लेकिन इस पूरे हिजाब प्रकरण में तो मैंने देखा कि देश के समाज के जो बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं जैसे कि स्त्री अधिकारों पर बात करने वाले लोग या महिला आयोग, उनका भी बहुत ही निराशाजनक रवैया देखा। अभी कल जो फैसला आया उसके बाद मैंने देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने ट्वीट किया और उनको बधाई दे रही है। इसके पहले मैंने देखा कि कर्नाटक से बहुत सारे ऐसे वीडियोज आ रहे थे, हिजाबी महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही थी, उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई महिला आयोग की तरफ से कोई। और महिला आयोग कब कार्रवाई कर रहा था जब दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एक महिला साड़ी पहन के उसको एंट्री नहीं दी जाती है तो फौरन महिला आयोग एक्शन में आ गया और बोला कि ये भारतीय संस्कृति का पहनावा है, बेशक वो जब किसी को साड़ी पहनने से रोका जाए करे महिला आयोग कार्रवाई, हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। लेकिन जब हिजाबी महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही थी तो महिला आयोग कहाँ चला गया था? महिला आयोग ने उस वक्त क्यों कार्रवाई नहीं की? और स्त्री अधिकारों पे बात करने वाले लोगों को भी मैंने रवैया देखा, कई लोग थे जो हिजाब के समर्थन में बिना किसी किंतु परंतु के बात कर रहे थे, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा कि कंडीशनिंग पे पक्षपाती विमर्श खड़ा करके समाज में ऐसा विमर्श किया उन्होंने पक्षपाती, जिससे हिजाबी महिलाओं की जो एजेंसी थी चुनने की उसको खारिज करने का काम किया गया। हिजाब का जो पूरा प्रकरण है इसके बहाने हम लोग चाहते एक समाज के रूप में हम न्यायपालिका या सरकार चाहती तो एक स्वस्थ बहस शुरू हो सकती थी। स्वस्थ बहस इन मायनों में कि हमारे देश में जो यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है, होमोजेनिटी की बात जो होती है, या ये बात होती है कि स्कूलों में ये आर्थिक आधार पे, भाषाई, शैक्षिक या क्षेत्रीय आधार पर जो भेदभाव होते हैं, क्या यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट उनको खत्म करने में कामयाब हो पाया है? मैं काफ़ी वक्त तक मैंने एक स्कूल में पढ़ा है, बीएड किया है और मेरा ये अनुभव है कि बिल्कुल भी यूनिफॉर्म अपने इस मकसद में कामयाब नहीं है। इसलिए हिजाब प्रकरण के बहाने चाहते हम तो एक समाज में ये एक स्वस्थ बहस शुरू होती थी, हो सकती थी कि भारत में जो यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है वो कितना समावेशी है, कितना लोकतांत्रिक है, भारत के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनको कितना स्थान दे रहा है, इस पर बहस हो सकती थी और एक अच्छा निष्कर्ष निकल के आ सकता था। अब तक इस पर बात नहीं की गई थी, हिजाब प्रकरण के बहाने बात हो सकती थी, लेकिन उस बात करने के मौके को भी रोका गया। हाईकोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी एक नाउम्मीदी भरा फैसला दिया है। मेरे जैसे तमाम हिजाबी महिलाओं को इससे बहुत निराशा हुई है। हालांकि उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ अच्छा इंसाफ न्याय स्थापित करने में कामयाब होगा और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अब हमको ये देखना है कि किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन मुसलमान औरतों को फेस करना पड़ेगा, बट the discrimination that Muslim women, particularly Muslim hijabi women, have been facing, this is not something new, and a fact-finding report went to Udupi and Bangalore, and they found out that the issue of disallowing hijab in campuses in the name of enforcing uniform is not new, and many such incidents have cropped from time to time in Bangalore and Udupi. The first one is from 2009, SVS College, Bantwal. A first-year student of BCom had started attending college in hijab, which led to protests by the Bajrang Dal. The college authorities allowed the student to attend classes wearing hijab, but after a few months, she withdrew and took admission in another minority-run college. Then we have a lot of such incidents. In 2016, a student of Srinivas College, Bangalore was barred from attending classes. And in 2018, in Agnes College, Bangalore, few students who had started wearing hijab were barred from attending classes, and no student in particular had to face loss of her academic year and subsequently took admission in a different college.
then we'll go on to the incidents of women being stopped at gates of college in Udupi leading up to the case. On 31 December 2021, they were stopped at Government PU College. On 2nd February 2022, they were stopped at Government Junior PU College, Kundapur, followed by Bhandalkar College of Arts and Science, Sri Venkatramana PU College, and then MGM College, Udupi. So I just wanted to point out that the discrimination that we are facing is not something new, but BJP government has found its way to legalize the harassment that we have been facing since a long time. And now I would like to invite Simra Ansari to speak. She is a student activist from Jamia Millia Islamia. निकलवाया उन्होंने। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सलाम। और जो ये इशू चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि आज तक मुस्लिम वुमेन्स को एक हिजाब को या उनके बुर्के को या उनकी असल पहचान को उनके शोषण का प्रतीक बताया गया है। आज तक यही हमने देखा है। लेकिन जब सोसाइटी में मुस्लिम वुमेन अपने मुद्दों पर खुद मुखर होकर बात रखती हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ बेखौफ होकर आवाज़ उठाती हैं, तो हम सभी जानते हैं कि ये कुछ एक ख़ास विचारधारा के लोगों को ये सहन नहीं होता। तो अगर हम इस सब इशू को देखें तो पता चलता है कि बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है कि जब मुस्लिम वुमेन्स को या मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, जब उनको शिक्षा ही हासिल नहीं करने दी जाएगी, तो फिर वो आगे पब्लिक स्पेस में आके अपनी बात भी नहीं रख सकेंगी, सरकार की नीतियों के खिलाफ भी नहीं बोल सकेंगी। तो ये उनको सिस्टमेटिकली रोका जा रहा है और उनको एक उनके सामने पेश किया जा रहा है कि आपको चूज़ करना है, या तो एजुकेशन लें या फिर आप अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखें। तो आज इस मंच के ज़रिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपनी आइडेंटिटी को भी बरकरार रखेंगे, अपनी असल पहचान को भी बरकरार रखेंगे और जो हमारा अधिकार है शिक्षा, उसको भी हम हासिल करेंगे। हम चूज़ नहीं करने वाले, हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे। मुसलमान औरतों को पब्लिक मेन स्ट्रीम स्पेसेस में बेसिकली हम स्पेसेस को क्लेम करेंगे। मतलब मुसलमान औरतों के साथ ऐसा होता है कि पहले people want to save them. People want to save them from oppression. But when the same women come out and claim their public spaces, they are treated as aliens. They are looked down upon. People perceive them as someone who is less informed. And this judgment will be, will be detrimental to Muslim women access to education. Muslims as a whole in India have been steadily striving to improve the educational standards of their children. And much of this has to do with an intrinsic trust that public institutions in the country will not discriminate between Muslims and others merely because of their faith. And we know, if we read the Sachar committee report, we know that Muslims are the most backward community in terms of education and employment, and this has been done by the systematic violence by the state. And in fact, hijab and uniforms have coexisted in thousands of institutes across the country for decades without any disturbance to public order whatsoever. The denial of hijab wearing students from entering classroom is going to send out an extremely demoralizing messages. Tantamount to declaring that public educational institutions will not be respectful of their faith and their choices. To highlight this further, I want to invite Khalida Appa. She is a social activist and she resides in Hyderabad. कर्नाटका हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं। वर्डिक्ट से हम सब मायूस तो नहीं है, लेकिन निराश है, थोड़ा सा गुस्सा भी है।
और बेचैनी भी। मेरा बिल्कुल हम लोग मायूस नहीं होते, इसलिए कि हम इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे। मिलेगा इंसाफ, ये उम्मीद है हमारी। जजमेंट से हम लोग इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है कि एक तो कोर्ट ने ये बात बताई कि हिजाब रिलीजियस एसेंशियल पार्ट में नहीं है, इसमें नहीं है, कि वो असल मुद्दा था ही नहीं। रिलीजियस प्रैक्टिस में ये एसेंशियल है नहीं है का सवाल ही नहीं था। वो क्यों लेके आए? सवाल था वहाँ पर यूनिफॉर्म के बारे में, मसला सब यूनिफॉर्म के लिए था। यूनिफॉर्म के अंदर बात करना था, इतना एक्सरसाइज करके हाईकोर्ट से, कर्नाटक हाईकोर्ट से जजमेंट में ये इस पर फोकस करती एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं पे बहुत ज़्यादा चर्चा चला। ये फैसला भी ऐसा आया कि रिलीजियस प्रैक्टिस पे एसेंशियल नहीं। अगर हमको यही मालूम करना था तो कोई आलिम के पास जाते, कोई फतवा देने वालों के पास जाते कि हम कर लेंगे, लेकिन कोर्ट में हम गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा राइट हम एक्सेस कर सकते कि नहीं। तो कोर्ट को चाहिए था कि वो कोर्ट के मतलब अपने जो कानून के एतबार से सही है गलत है, क्या आपको ये रिलीजियस फ्रीडम है कि नहीं, ये बताना चाहिए था। उसमें तो ये बताया गया कि ठीक है, एक हद तक उन्होंने कोशिश तो ये की, थोड़ा बहुत ठीक ही है हमारे हिसाब से। क्या क्या किया है उन्होंने कि जहाँ पे कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी जहाँ होती है वहाँ पे अगर यूनिफॉर्म कोड का अगर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके अंदर हिजाब अगर इंक्लूड नहीं हुआ तो वहाँ पे वो लागू होगा, वहाँ यूनिफॉर्म हिजाब नहीं पहन सकते। ये पूरे आम कॉलेज के लिए नहीं है। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ, कल से जब से लाइव लॉ में आया है तब से कुछ मीडियाज, सारे मीडियाज को नहीं करूँगी, कुछ मीडियाज के अंदर चाहिए टीआरपी और मसाला ही चाहिए। ऐसा ऐसा नैरेटिव सेट करते कि जैसा कि बैन हो गया पूरे हिंदुस्तान में। बैन है तो हम के साथ, ये बैन होगा भी नहीं, ये होता भी नहीं। ये सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए पूरा बैन, जैसे फ्रांस में बैन हो गया, सब बैन 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 बैन। क्या हुआ कि जब कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी में अगर वो प्रिस्क्राइब करें कि ड्रेस कोड में हिजाब नहीं है, क्लियरली मेंशन करें, तो वहाँ पर पहना नहीं, बाकी सब के एज इट इज चलेगा। हाँ, अभी इसको लेकर जो कल से जो सोशल मीडिया में चल रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। इसलिए कि कुछ राइट विंग्स, जैसा कि हम देखें कर्नाटका में लड़कियां जब हिजाब पहन के चले गए तो भगवा कंडा पहन के आगे जो हरासमेंट कर रहे थे, आप सब जानते हैं। अब मीडिया के कुछ लोग भी वो छोटी बच्ची के पीछे, मतलब मीडिया के साथ फेस करना पड़ेगा, वो भगवा कंडा वालों के साथ फेस करना पड़ेगा, कुछ और भी लोगों के साथ ये हरासमेंट शिकार करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। जजमेंट के इस पार्ट से एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है कि इस पार्ट से आगे कुछ कोई मुस्लिम महिला किसी इस मुल्क के किसी कोने में अगर हिजाब पहन कर जाती हो, कोई बैंक जाती हो, बाजार जाती हो, कोई कॉलेज जाती हो, कहीं और जाती हो, उसके पीछे अगर मॉब पॉलिसिंग अगर हो गया, मॉब हिजाब पॉलिसिंग अगर हो गया, तो उसमें जिम्मेदार कौन है? ऐसा नहीं होगा, एक गारंटी भी नहीं। इसलिए कि इंटरम जब ऑर्डर आया था, इंटरम ऑर्डर को लेकर सिर्फ लड़कियों के स्टूडेंट्स के लिए नहीं रोका गया था, बल्कि वहाँ के स्टाफ को सबके सामने रोड पे पूरा उतार दिए थे, पूरा हिजाब उतार दिए गए थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट के ये पार्ट से आगे अगर नुकसान होगा तो इसका भरपाई कौन करेगा? ये हमने बता दिया कि ये आपने गलत किया, ये बात गलत, ये मुद्दा था ही। अब रही बात हम कब खिलाफ थे यूनिफॉर्म, हम तो कभी खिलाफ नहीं, लेकिन हम इंडिया जैसे कंट्री में, या सेक्युलर कंट्री में इतने मल्टी कल्चरल के लोग बसते हैं, सब लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में तो सभी लोग बेटी पढ़ाओ की बेटी पे हर रोज बेटी पढ़ाते हैं, तो सब लोग को लेकर इंक्लूसिव लेकर यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा। कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी मेरे पेरेंट्स हैं, वो मौजूद रहते हैं, तो पेरेंट्स भी वो पेरेंट्स होना चाहिए जो इस बात पर बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। तो हम यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं, जहाँ जैसा जिसको मर्जी आए तोड़ो मरोड़ो और मुसलमानों पर मत बदनाम करो, ये प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन सबके कल्चर के इंक्लूसिव होते हुए। अगर कोई किसी बीमारी की वजह से कुछ शूज सॉक्स नहीं पहन सकते हो, या किसी और अपने रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से कोई टॉवल लगाना चाहते हो, कोई क्या पहनना चाहते हो, उनको इंक्लूसिव रहना चाहिए। तो ये चीज़ हम
मीडिया का इस तरह के रवैये को हम कंडेम करते हैं कि जो जैसा जिस तरह पेश करना था उस तरह नहीं पेश करके पूरा लोगों के माइंडसेट को डाइवर्ट करके उन लोगों को ताकत देने की कोशिश करें जो राइट विंग है। यहाँ पे जो फसाद बर्पा करना चाहते हैं, यहाँ पे जो अभद्रता बर्पा करना चाहते हैं, इनके लिए और ताकत बचने वाली बात की